Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. Today we'll do the omission of the antecedent. What an antecedent is. I have already told you the antecedent is what we replace in the next clause or in the next sentence and we put a relative pronoun instead of that noun and pronoun. Antecedent is a noun or pronoun that will be replaced by a relative pronoun. एक एंटीसीडेंट वो होता है जिसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए वो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और उस नाउन और प्रोनाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए उसकी जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन पुट करते हैं और वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द नाउन और प्रोनाउन विच वी हैव रिप्लेस्ड. सो ओमिजन ऑफ द एंटीसीडेंट, जो नाउन और प्रोनाउन हम रिप्लेस करते हैं उसकी ओमिजन यानी उसको कट करना. In older English, the antecedent of a relative pronoun was sometimes left out as who works not shall not eat. Who is a relative pronoun. What a pronoun or noun can be in this sentence. Look at the verb works. Works है, work नहीं है. This is singular verb. This agrees with singular noun and pronoun works. जब भी हम वर्ब के साथ एस किसी भी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस पुट करते हैं दैट मीन्स दिस वर्ब इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. हु वर्क्स, हु यानी हम सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम कोई नाउन भी लिख सकते हैं, किसी का नेम फॉर एग्जांपल, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना है. ये एक जनरल स्टेटमेंट है. हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. सो Who works not shall not eat. हम जनरली बात कर रहे हैं. तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी he who works not shall not eat. हमने यहाँ पे हमने he की जगह यूज़ किया था, यहाँ पे omit किया था and this happens only in older English. Whom the gods love die young. Die, this verb is followed by plural noun or pronoun. So that means we are not supposed to use he, she or a singular noun क्योंकि यहाँ पे verb हमारा plural noun या pronoun के साथ agree करता है. So those, yes, plural pronoun, those whom the gods love die young. तो ये सिर्फ this only happens in older English when the antecedent is omitted. Okay, next, agreement of the relative pronoun and its antecedent. What is antecedent? I have already explained what an antecedent is. An agreement of, what does that mean? That means if we are using a singular noun, that means we have to use verb according to that noun. जो भी हमारा नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, वी हैव टू यूज़ आवर वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर नाउन और प्रोनाउन. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर नाउन एंड प्रोनाउन. अगर प्लूरल में है तो हम अकॉर्डिंग टू दैट प्लूरल नाउन और प्रोनाउन वी विल यूज़ आवर वर्ब, और अगर सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू दैट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन वी विल यूज़ आवर वर्ब. Look at the definition. As the relative pronoun refers to a noun or pronoun called its antecedent, it must be of the same number and person as its antecedent. That means जो आपका नाउन और प्रोनाउन है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ करेंगे. अगर आपका जो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू योर नाउन और प्रोनाउन यूज़ होगा. रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड. द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड. Look at this. This is a singular noun, the boy, who. As you all know, who is used both with singular and plural, so you will use relative pronoun who with singular and plural. Who is used with both the singular and plural. सब रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के साथ नहीं यूज़ होते. कुछ सिंगुलर के लिए अलग होते हैं, कुछ प्लूरल के लिए अलग होते हैं.
we have already done this, that which what are some of the pronouns that are used for singular nouns and pronouns, and what are some of the relative pronouns that are used for plural nouns and pronouns. Okay, I who am your king will lead you. I is a singular pronoun, so I के साथ हमने यहाँ पे helping verb am यूज़ किया. I who am your king will lead you. यहाँ पर भी singular verb यूज़ हुआ है. हम जो हमारे प्रोनाउंस और नाउन्स होते हैं, हम बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग, जितने अगर हमारे प्लूरल हैं तो उसके साथ, अगर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की अगर कोई प्लूरल फॉर्म्स हैं तो उसके साथ हम अकॉर्डिंग टू दैट यूज़ करेंगे. So next is, but the case of the relative pronoun depends upon its relation to the verb in the clause in which it occurs. Second thing is that अगर हम हमारे क्लॉज में जो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल whether this is nominative case, whether this is subjective case, or whether this is ऑब्जेक्टिव केस, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटमेंट. आप अपनी स्टेटमेंट में क्या बात कर रहे हैं. लुक एट द एग्जाम्पल, रामा इज़ द बॉय हु डिड इट. नाउ दिस इज़ नॉमिनेटिव केस. इट डिपेंड्स, आपकी क्लॉज पे डिपेंड करता है कि ये नॉमिनेटिव केस है या ये सब्जेक्टिव केस है या ये ऑब्जेक्टिव केस है, उस पर डिपेंड करता है ये. तो आप अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल इट्स रिलेशन टू द वर्ब इन द क्लॉज इन विच इट ऑक्यर्स. जो रिलेटिव प्रोनाउन आपके जिस क्लॉज में ऑक्यर होगा, मतलब जिस क्लॉज में आता है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो आपने इसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है. अगर ये हु का नॉमिनेटिव केस हु है, नॉमिनेटिव केस में हम हु यूज़ करते हैं, पोजेसिव केस में हम हुज यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको whom यूज़ करते हैं. तो इसी तरह आपके ये डिपेंड करता है, इसका रिलेशनशिप आपके वर्ब से डिपेंड करता है कि किस तरह आपने इसको आप अपने क्लॉजेस में यूज़ करना है. रामा इज़ द बॉय whom I want. Now this is objective case. As I told you, it depends on your statement. It depends in what sense you are talking. अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम हु नहीं यूज़ कर सकते. रामा इज़ द बॉय हु आई वॉन्ट, वी कैन नॉट यूज़ इट. इट डिपेंड्स ऑन द क्लॉज. जैसे कि पहले भी डेफिनेशन में बताया कि जैसी आपने स्टेटमेंट देनी है, आपने अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट यू आर सपोज टू यूज़ द रिलेटिव प्रोनाउन. रामा इज़ द बॉय हुज पेंसिल आई हैव. नाउ दिस इज़ पोजेसिव केस. यहाँ पे हम हु नहीं यूज़ कर सकते. रामा इज़ द बॉय हु पेंसिल आई हैव. सो it depends totally on your clause के in which what is the relation between the noun and your verb. यहाँ पर अब हमने possessive case में यूज़ किया है. Rama is the boy to whom I spoke. Now again this is objective case. यहाँ पे हम to who नहीं कर सकते क्योंकि ये objective case है. He whom we worship, by whose gift we live is the Lord. ही whom we worship, it depends. आप ही whom, हम जिसकी इबादत करते हैं, he whom we worship, we cannot say he who we worship, by whose. यहाँ पे again this is possessive case. इन शॉर्ट, जब भी आपने कोई बात करनी होती है तो जो आपकी स्टेटमेंट, अगर आपने पोजेसिव केस में बात कर रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट पे आपके क्लॉज पे डिपेंड करता है. जिस क्लॉज में जो ऑक्यूर हो रहा होता है कोई भी आपका नाउन और वर्ब, उसके साथ आपका अग्रीमेंट अलग होती है हर रिलेटिव प्रोनाउन की. Position of the relative pronoun. We'll do position and compound relative pronouns in the next lecture. That's all for today.